اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 101 بائے اردو داستان۔ گریچر اور میگنیشیا نے بارتھم کے چپے چپے کو چھان مارا تھا۔ وہ اندرونی علاقوں میں اتنی دور نکل آئے تھے کہ اب واپسی کا سفر انہیں دشوار لگ رہا تھا۔ اگر اسی راستے سے واپس آئے تو مہینوں لگ جاتے اور سفر کی لاتعداد صعوبتیں دوبارہ برداشت کرنا پڑتی۔ شیران کی تلاش میں ان صعوبتوں کو فراموش کر رہے تھے۔ انہیں خود بھی اس کی لگن تھی۔ شیران انہیں خود بھی اتنا پسند تھا کہ وہ اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار تھے۔ بارتھم کے اندرونی علاقوں کی شناسہ ان کے ساتھ تھے۔ اگر یہ لوگ ان کے ساتھ نہ ہوتے تو اول تو وہ اس قدر ویران علاقوں کا رخ نہ کرتے، اور اگر آ بھی جاتے تو ان راستوں کو یاد رکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا۔ مالیلوں نے خاص طور سے ان لوگوں کا انتخاب کر کے انہیں یہاں بھیجا تھا اور ان سے انہیں بہت مدد ملی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک پہاڑی علاقے میں خیمہ زن تھے۔ سردی کافی تھی۔ 2 دن قبل ہلکی برف باری ہو چکی تھی اور تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ خیمے کے اندر انگیٹھیاں روشن کر لی گئی تھیں۔ سرخ آگ کی گرمی سکون بخش تھی۔ ایک خاص قسم کی گھاس کا قہوہ بنایا گیا تھا جو بدن کو گرم کرنے میں معاون ہوتا تھا۔ گرم قہوے کے گھونٹ لیتے ہوئے وہ خاموشی سے کچھ سوچ رہے تھے۔ آرمان، دفتن گریچر نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا۔ اس کے سامنے بیٹھے دبلے پتلے بدن کا شخص سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کل صبح کے سفر کے بارے میں ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ویرانوں کے بے مقصد سفر کے بارے میں عموماً فیصلے کرنا بے مقصد ہوتا ہے مسٹر گریچر۔ بے مقصد سفر؟ ہاں، میں ان الفاظ کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ اب ہمیں یہ احساس ہونے لگا ہے کہ ہمارا یہ سفر بے مقصد ہے۔ کیوں؟ گریچر نے سوال کیا۔ یہ علاقہ اتنا مختصر نہیں جناب کہ ہم اس کے چپے چپے کو کھنگال مارے، اور جسے ہم تلاش کر رہے ہیں اس کے بارے میں پورے یقین سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہاں موجود بھی ہے یا نہیں۔ نہ ہی ہمیں اس کا پروگرام معلوم ہے۔ تم تھک گئے ہو دوست؟ گریچر مسکرایا۔ ہاں، میں اس سے انکار نہیں کروں گا جناب۔ دراصل کوئی منزل نہیں ہے ہماری۔ اگر کوئی منزل ہو تو انسان باہمت ہوتا ہے۔ کون جانے وہ کہاں ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں؟ ہم آگے نکلے ہوں اور وہ ہمارے عقب میں پہنچ گیا ہو، کون جانے۔ گریچر نے میگنیشیا کی طرف دیکھا۔ کیوں میگنیشیا، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں کیا کہوں گریچر؟ نہیں بھائی، کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہے۔ تم سب مجھے تنہا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اگر تم سب کی رائے ہو تو میں واپسی کے سفر کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب یہی مناسب ہوگا جناب، آرمان نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ واپسی کا سفر بھی اتنا ہی مشکل ہوگا؟ میگنیشیا تھکے تھکے انداز میں بولی۔ نہیں میڈم، ہم اس سفر کو آسان بنا سکتے ہیں، آرمان نے کہا۔ وہ کیسے؟ جس جگہ ہم موجود ہیں یہ تلکم کہلاتی ہے۔ اگر ہم سیدھ میں چلتے رہیں تو پالی ول کے علاقے سے گزر کر لوئی قبائل کے علاقے میں پہنچ جائیں گے، اور اگر یہاں سے بائیں طرف کٹ جائیں تو ایک دشوار گزار علاقہ طے کر کے دریا آرسان کے کنارے پہنچ جائیں گے۔ یہ دریا مشرق میں ساحل کے علاقے سے گزر کر تھائی لینڈ تک جاتا ہے، اور مغرب میں چلے تو کانگ ہو کے نزدیک سے گزرتا ہے۔ کانگ ہو ہمارے لیے سب سے قریب جگہ ہے، چنانچہ واپسی کے لیے اس سے مناسب راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ کانگ ہو؟ گریچر گہری سانس لے کر بولا۔ ٹھیک ہے آرمان، ہمیں آرسانی کا رخ کرنا چاہیے۔ ہم کانگ ہو پہنچ کر مارینوں کو شیران کی تلاش میں ناکامی کی رپورٹ دیں گے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال دوسری سکونوں نے خیمے وغیرہ سمیٹ کر رخ بدل لیا اور آرسان کی طرف سفر کرنے لگے۔ بلا شبہ یہ راستہ بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ دلدلیں، گھاٹیاں، ناقابل عبور چٹانیں، وحشی جانور، جان لیوا مکھیاں اور نہ جانے کیا کیا۔ اگر یہ لوگ زبردست انتظام کر کے نہ چلے ہوتے تو اب تک موت کا شکار ہو گئے ہوتے۔ لیکن آرمان اور دوسرے لوگ ان علاقوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، اس لیے ضروری دوائیں اور کسی بھی ہنگامی حالت میں استعمال کے لیے تمام چیزوں کا بندوبست کر کے چلے تھے۔ آرسان کے کنارے پہنچنے میں بھی 3 دن کا سفر کرنا پڑا تھا۔ تب کہیں دور سے دریا نظر آیا۔ دریا کیا، سمندر تھا۔ اگر اس کی تیز روانی سامنے نہ ہوتی تو سمندر کا دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ البتہ یہاں موسم معتدل تھا۔ وہ سردی جو پچھلے علاقے میں تھی یہاں نہیں تھی۔ دریا کے کنارے خوبصورت تھے۔ انہوں نے دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور خیمہ نصب کر لیا۔ شام ہو چکی تھی اور دن بھر کا سفر کر کے وہ چور چور ہو چکے تھے۔ گریچر کنارے پر پہنچ کر پانی کی چھینٹیں چہرے پر مارنے لگا۔ میگنیشیا خیمے کے پاس موجود تھی۔ گریچر نے چہرہ دیکھ کر گہری گہری سانسیں لی اور دفتن اس کی نگاہ تھوڑے فاصلے پر جھاڑیوں میں نظر آتے ایک رنگین کپڑے پر پڑی۔ وہ چونک پڑا۔ دوسرے لمحے اس طرف چل پڑا۔ جھاڑیوں سے ایک پاؤں باہر نکلا ہوا تھا، ایک نازک نسوانی پاؤں۔ گریچر نے جلدی جلدی جھاڑیوں کو ہٹایا اور پھر انسانی بدن کو باہر کھینچ لیا، لیکن چہرے پر نگاہ پڑتی گریچر کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے حلق سے بھرائی ہوئی آواز نکلی، ارے سدھاشی! گریچر کی آنکھوں کو دھوکہ نہیں ہوا تھا۔ سدھاشی کوئی اجنبی تو نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسی شخصیت تھی جسے ایک بار سرسری نگاہوں سے دیکھا ہو۔ گریچر اسے لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، لیکن اس جگہ اور ان حالات میں اس کا ملنا ناقابل یقین تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شکل و صورت، قد و قامت اور بالوں کا انداز وہی ہے۔ اگر یہ سدھاشی کی ہم شکل ہے تو صورتوں کی یکسانیت انتہائی حیرت انگیز ہے، اور اگر یہ واقعی سدھاشی ہے تو یہاں اس کی موجودگی ناقابل یقین ہے۔ اس نے ایک بار پھر انتہائی باریک بینی سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔
जगह जगह नील पड़े हुए थे। पेशानी पर एक गहरा जख्म भी था जो दरिया के पानी से धूल धुल कर सफेद हो गया था। चेहरा ज्यादा खून बह जाने की वजह से हल्दी की तरह जर्द था। दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा थे और उनके दरमियान से दो खूबसूरत दांत झांक रहे थे। बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी। दरिया के किनारे से घसीट कर लाने की वजह से वो हाथ मुड़ गया था। गिरीचर ने सबसे पहले उसके हाथ को सही पोजीशन में रखा और फिर धड़कन सुनने के लिए उसके सीने से कान लगा दिया। नन्हा सा दिल जिंदगी का ऐलान करने की जिद्दोजहद कर रहा था, लेकिन बदन की पूरी मुमलिकत खामोश थी। सुदाशी या उसकी हमशक्ल के वजूद में जिंदगी महसूस करके गिरीचर का मुतजस्सी जहन जाग उठा। उसे जल्दी से थोड़े फासले पर नस्ब उन खैमों की तरफ देखा जहाँ उसके दूसरे साथी मौजूद थे। मैग्नीशिया जो खैमे के दरवाजे के पास खड़ी अतराफ के मनाजर में खोई हुई थी, गिरीचर के हरकतों सिकनात से उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई और अब सूरत हाल मालूम करने के लिए उसी तरफ आ रही थी। गिरीचर उसे आते देखा आवाज लगाई, मैग्नीशिया जरा जल्दी आओ। मैग्नीशिया ने गिरीचर के कदमों में एक इंसानी जिस्म पड़ा देखा तो उसके कदमों में तेजी आ गई। ओ मेरे खुदा, ये कौन है? वो हैरत से बोली। तुम इसे गौर से देखो, मुमकिन है मेरी बसारत मुझे धोखा दे रही हो। गिरीचर ने कहा। मैग्नीशिया तो झुक गई, फिर उसके हलक से सरसराती आवाज उभरी, अरे सुधाशी। गोया मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया। गिरीचर एक गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन ये यहाँ। गिरीचर, क्या ये मर चुकी है? जिंदा है, लेकिन इसे फौरन खैमे में ले जाना चाहिए। अगर इसे फौरी तिब्बी इमदाद न मिली तो इसकी मौत यकीनी है। तो फिर देर मत करो, साइमन को आवाज दो। नहीं, पहले इसे खैमे में ले चलते हैं। इसका एक हाथ भी टूटा हुआ है, जरा इसे उठाने में मेरी मदद करो, गिरीचर ने कहा। फिर मैग्नीशिया की मदद से उसने सुदाशी को कंधे पर डाला और दोनों खैमे की तरफ चल पड़े। अब उनके दूसरे साथी भी उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। साइमन एक बेहतरीन सर्जन था। उसने किसी गुफ्तगू शनीद के बगैर अपनी पूरी तवज्जो उस पर मबजूल कर दी और जो कुछ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के उसके पास था सुदाशी पर सर्फ कर दिया। टूटे हुए हाथ को कसकर बांधा गया, पेशानी के जख्म की बैंडेज की गई और जितनी खराशें थी उन पर मरहम लगाया गया, लेकिन खून की कमी पूरा करने के लिए कोई तदबीर कारगर नहीं थी। सुदाशी धुले हुए कपड़े की तरह सफेद हो रही थी। वो सब खामोशी से डॉक्टर साइमन की कोशिशों में उसका हाथ बटाते रहे। जब अपने काम से फारिग हो गए तो मैग्नीशिया ने पूछा, सूरत हाल तशवीशनाक तो नहीं साइमन? सख्त तशवीशनाक है, आपको इनके बारे में फौरी फैसला करना है, साइमन ने कहा। कैसा फैसला डॉक्टर? अगर ये आपके लिए कोई अहम शख्सियत है तो इसे फौरन किसी ऐसी जगह ले चलिए जहाँ इसकी ज़िंदगी बचाने के मुनासिब इंतजाम हो सके। इसे खून की फौरी ज़रूरत है और यह हमारे पास ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं। और अगर आप ये सब कुछ महज इंसानी हमदर्दी के तौर पर कर रही हैं तो फिर इंतज़ार कीजिए। मैं फौरी कुव्वत बहाल करने वाला इंजेक्शन दिया है। अगर इसे होश आ गया तो इसकी जान बच जाने के इम्कानात हैं। ओ, ये मिस्टर मार्लिनो की एक ख़ास साथी है जिससे वो बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें इसकी मौत के लिए माफ़ नहीं किया जा सकता, ग्रीचर ने कहा। तब बराह करम फौरन यहाँ से चल पड़ें, बल्कि मेरी राय है कि हमें कांगू ही चलना चाहिए। बारथम के इस इलाके में करीब तरीन जगह कांगू ही हो सकती है। कोई छोटी सी बस्ती हमारे लिए बेमकसद रहेगी क्योंकि जदीद तिब्बी सहूलतों का बंदोबस्त नहीं होगा। तुम क्या कहती हो मैग्नीशिया? ग्रीचर ने पूछा। जैसा तुम मुनासिब समझो ग्रीचर। हम जिस मिशन पर आए हैं अभी दूर दूर तक उसकी कामयाबी के इम्कानात नजर नहीं आते। हम सुदाशी जैसी शख्सियत की जिंदगी का रिस्क भी नहीं ले सकते। मिस्टर मार्लिनो हमारी इस बेहिसी पर हमें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें इल्म है कि उन्होंने शीरान जैसी महबूब शख्सियत को भी सुदाशी के बारे में कुछ नहीं बताया था। शीरान? ग्रीचर ने ठंडी सांस लेकर कहा। मेरे ज़हन में एक और ख्याल भी है। क्या? सुदाशी के इस इलाके में मौजूद होने की वजह मुमकिन है शीरानी हो, मुमकिन है ये दीवानी उसकी तलाश में यहाँ आई हो और उसके इंतकाम का निशाना बन गई हो। वो तुम्हारा ख्याल है कि शीरान ने? हाँ, वो दरिंदा सब कुछ कर सकता है, ग्रीचर ने कहा और चौंक कर इधर उधर देखने लगा जैसे कहीं शीरान उसके अल्फाज न सुन लिए हो। फिर वो दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर झींप गया। मेरी एक राय है और मिस्टर ग्रीचर, डॉक्टर साइमन ने कहा। क्या? शीरान की तलाश के लिए हम चंद लोगों को यहाँ छोड़ देते हैं, अपना काम जारी रखेंगे। हम ट्रांसमीटर पर उनसे रब्ता रखेंगे। जैसे ही शीरान नजर आया लोग उसे घेर लेंगे या हमें इत्तला दे देंगे। नहीं डॉक्टर साइमन, अगर शीरान उन लोगों की नज़र में भी आ गया तो कोई सूदमंद बात ना होगी। हम सब साथ ही चलेंगे। बराह करम आप लोग वापसी के इंतजाम कीजिए। हम सुदाशी को कांगू ही ले चलेंगे। ओके, डॉक्टर साइमन ने कहा। फिर हंगामी अंदाज में रवानगी के इंतजामात होने लगे। मैग्नीशिया मुसलसल सुदाशी की देखभाल कर रही थी। ग्रीचर की निगाहें वक्फे वक्फे से इधर उधर भटकने लगती थी। न जाने क्यों इसके दिल में ये ख्याल जड़ पकड़ गया था कि सुदाशी को इस हाल तक पहुंचाने वाला शीरान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मैग्नीशिया सुदाशी के हसीन और मासूम चेहरे को देखते हुए सोच रही थी कि औरत मोहब्बत के हाथों किस कदर बेबस हो जाती है। शीरान जैसे वैशी सिर्फ शख्स से मोहब्बत की तवक्को रखना फजूल है। वो शख्स न जाने इंसानों के कौन से रेवड़ से ताल्लुक़ रखता है। उसके दिल में मोहब्बत और चाहत के अल्फाज भला कहाँ, लेकिन मोहब्बत जैसी नामुराद शय इंसान को अक्ल खिद से बेगाना कर देती है और वो बार बार धोखा खाने में मुसर्रत महसूस करता है। फिर सफ़र शुरू हो गया। वो बर्क रफ्तारी से कांगू की जानिब बढ़ रहे थे। ग्रीचर गहरी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन मैग्नीशिया वक्फे वक्फे से सुदाशी के चेहरे की तरफ देख लेती
जो अभी तक जिंदगी से आरी महसूस होता था। सिर्फ सांसों की आमदोरफ्त जारी थी। पता नहीं मौत उसे मोहलत देना चाहती थी या जिंदगी के बकाया लम्हात पूरे हो रहे थे। बहरहाल उन्होंने सफर जारी रखा। फिर रात की तारीकी फैल गई। पुरहोल सन्नाटे और तारीकी में ये सफर बड़ा अजीब लग रहा था। वो मुसलसल जाग कर सफर कर रहे थे। एक जिंदगी का सवाल था, और जिंदगी भी ऐसी शख्सियत की जिसे मार्लिनो महबूब रखता था, और इस सिलसिले में किसी किस्म की भी गफलत को मार्लिनो हरगिज माफ न करता। सुबह के वक्त सफर में काफी मुश्किलात पेश आने लगी। ठंडी हवा पलके जोड़े दे रही थी, लेकिन उनका फर्ज उन्हें हर हाल में बढ़ते रहने पर मजबूर कर रहा था। डॉक्टर साइमन सुदाशी के करीबी था। सुदाशी की हालत ज्यादा बेहतर नहीं है जनाब, साइमन ने कहा। 12 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये होश में नहीं आई है। मुझे इंतहाई तशवीश और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर चंद घंटे और यही सूरत हाल बरकरार रही तो मुमकिन है इसकी सांसों की आमदोरफ्त रुक जाए। ये सुनकर सबके चेहरों पर इस्तराब के साए फैल गए। क्या तुम इसे कोई और इंजेक्शन नहीं दे सकते डॉक्टर? ग्रीचर ने पूछा। दे तो सकता हूँ, लेकिन यकीन से नहीं कह सकता कि वो इंजेक्शन इस पर कारगर होगा या नहीं। ओ, फिर तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। मैं इस मुश्किल का एक हल पेश करना चाहता हूँ, अगर आप लोग पसंद करें तो। हाँ हाँ कहो भाई, इस वक्त इन तकल्लुफात की गुंजाइश नहीं है। हमारे पास महदूद हिता अमल के ट्रांसमीटर मौजूद हैं। अगर हम इनमें से किसी ट्रांसमीटर पर कांगू कॉल करने की कोशिश करें तो शायद हमें कामयाबी हासिल हो जाए। ग्रेजर चौंक कर डॉक्टर साइमन को देखने लगा, फिर मुसर्रत लहजे में बोला, मैं तुम्हारा मकसद समझ गया डॉक्टर। हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। जितना सफ़र हम तय कर चुके हैं, इसके तहत कांगू से सिलसिला मिल जाने के इम्कानात रोशन हैं। हम पहले भी कोशिश कर सकते थे, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं गया। कमाल है, मेरे ज़हन में भी ये ख्याल नहीं आया। मैग्नेशिया ने भी डॉक्टर की ख्याल की तायद की। थोड़ी देर के लिए सफ़र मुलतवी कर दिया गया और ग्रेचर ट्रांसमीटर पर कांगू कॉल करने लगा। इस दौरान में डॉक्टर ने वो इंजेक्शन तैयार कर लिया जो सुदाशी की जिंदगी में चंद लम्हात का इजाफा कर सकता था। सुबह का वक्त था। ग्रीचर की कोशिश से थोड़ी देर बाद राब्ता कायम हो गया, और जब ट्रांसमीटर पर सुर्ख रोशनी नमूदार हुई तो ग्रीचर का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने मैग्नेशिया को इशारा किया कि राब्ता कायम हो चुका है। मैग्नेशिया जल्दी से ट्रांसमीटर के करीब पहुंच गई। हेलो हेलो HO4, हेलो हेलो HO4। हाँ HO4, कहो क्या बात है, कहाँ से कॉल कर रहे हो? ये बार्थम का मगरबी इलाका है। हम नाथन की पहाड़ियों के पास से गुजर रहे हैं। मिस्टर मार्लिनो को एक अहम इत्तला देनी है। चल हमें इंतजार करें, मैं मार्लिनो से रब्ता करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ से जवाब मिला, सिर्फ कोशिश नहीं, यकीनी तौर पर रब्ता चाहिए, ये इमरजेंसी है। बेहतर है, दूसरी तरफ से कहा गया। फिर खामोशी छा गई। दोनों उम्मीदों बीम की नजरों से ट्रांसमीटर को देखते रहे। सुर्ख बत्ती एक बार फिर रोशन हो गई। इस बार ट्रांसमीटर पर मार्लिनो की आवाज उभरी। हेलो, कौन है? ग्रीचर बोल रहा हूँ मिस्टर मार्लिनो। हाँ ग्रीचर, कहो, कोई पता चला? अभी तक नहीं जनाब, लेकिन सुदाशी में इंतहाई तशवीशनाक हालत में मिली है। ओह सुदाशी, मुझे इसके बारे में बताओ। बैंकॉक से उसके बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं मिली। सिर्फ यही मालूम हो सका कि उसे अगवा कर लिया गया है। वो बार्थम के इलाके में दरिया आरसान के किनारे झाड़ियों में पड़ी मिली है। वो बेहद जख्मी है। उसके जिस्म से काफी खून बह चुका है। वो तकरीबन 14 घंटों से हमारे पास है, लेकिन अभी तक होश में नहीं आई है। बराह करम आप फौरी तौर पर हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर भेजिए, ताकि सुदाशी की जिंदगी खतरे से बाहर हो सके। मार्लिनो चंद लम्हे खामोश रहे। उसकी भराई हुई आवाज सुनाई दी। उसकी ये हालत किस तरह हुई? क्या इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं हो सका? नहीं मिस्टर मार्लिनो, हम लोगों का ख्याल है कि शायद सुदाशी शीरान की तलाश में यहाँ पहुँच गई थी, और यहाँ वो शीरानी का शिकार हो गई। ओह, मुझे अपनी सही पोजीशन से आगाह करो। मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। बाकी तफसीलात यही तुमसे मालूम करूंगा। हम दरिया आरसान के किनारे किनारे सफर कर रहे थे, लेकिन अब इससे कटकर मगरबी समत में चल पड़े हैं। हमारे बाएं हाथ पर नाथन की पहाड़ियां हैं। अगर हम इसी रफ्तार से सफर करते रहे तो पहाड़ियों का सिलसिला खत्म हो जाएगा और हम दलदली इलाके में पहुंच जाएंगे। कांगू पहुंचने का रास्ता मुख्तसर मगर बेहद दुश्वार गुजार है। तुम दलदली इलाके में दाखिल होने की कोशिश मत करना। नाथन की पहाड़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर हेलीकॉप्टर का इंतजार करना। मैं फौरी तौर पर उन्हें रवाना कर रहा हूँ। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ते हो गया और सुर्ख बत्ती बुझ गई। भूरे रंग की चाराक लोमड़ी दबे कदमों आगे बढ़ी। इसकी कुव्वत शामा इसका साथ नहीं दे रही थी। पता नहीं ये कोई मुर्दा जानवर था या जख्मी था। इंसान से उसकी शनासाई ना थी, क्योंकि वो जिन इलाकों में पैदा हुई थी वहाँ इंसान का गुजर मुश्किल ही से होता था। वहाँ बड़े बड़े सब्ज बिच्छू और इंतहाई जहरीले सांप बकसरत पाए जाते थे। बार्थम के इलाकों में ये इलाका सबसे खतरनाक करार दिया जाता था, लेकिन किसी भूले भटके इंसान का इस इलाके में निकल आना नामुमकिनात में से नहीं था। चुनांचे इस नन्ही सी लोमड़ी को हैरत हुई थी कि ये ढेर कैसा है। लगता तो कोई जानदार ही है, पता नहीं सो रहा है या मर चुका है। इसके नज़दीक से गुजरा जाए या नहीं, लेकिन वो आदत से मजबूर थी। जब काफ़ी देर तक उसे इस ढेर में जुम्बश महसूस न हुई तो वो पंजों के बल चलती दुम हिलाती उसकी जानिब बढ़ी। करीब पहुंचकर उसने इस जानवर को बगौर देखा, जो इससे कबल इसकी निगाह से नहीं गुजरा था। बज़ाहिर इसमें ज़िंदगी मफकूद महसूस होती थी। अगर ये जिंदा नहीं था तो फिर भला इसका गोश्त खाने में क्या आर हो सकता है। चुनांचे वो आगे बढ़ी और इस जानवर को सूंघने लगी। दफातन इस जानवर में जुम्बश पैदा हुई। फिर इससे काबिल के लोमड़ी की लंबी छलांग लगाती। इसकी दोनों अगली टांगें इस जानवर की गिरफ्त में थी। फिर वो उठ बैठा
वो जानवर नहीं, इंसान था, शीरान था। वो चंद लम्हों तक मुज़ाहमत करती लोमड़ी को देखता रहा, फिर उसने इसे छोड़ दिया। लोमड़ी एक ही जश्न में झाड़ी में जाकर गायब हो गई। किंग लोयो सुदाशी के कत्ल के बाद उसने दरिया आरसान का वो किनारा छोड़ दिया और एक पायाब जगह से दरिया उबूर करके जंगल में दाखिल हो गया था। एक लम्हे के लिए भी उसके दिल में यह ख्याल नहीं आया था कि उसने किंग लोयो जैसा दोस्त खो दिया है या सुदाशी जैसी हसीन लड़की को इंतहाई बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया है। वो अपने किए पर नादिम या पशेमान होने का आरी नहीं था। चुनांचे अब उसके ज़हन की किसी गोशी में भी ये बात नहीं थी कि वो क्या कर आया है। दरिया आरसान को पार करने के बाद वो जिस इलाके में दाखिल हुआ, उसमें थोड़ा सा सफ़र करने के बाद भी उसे महसूस हो गया कि ये इलाका ज़रूर से ज़्यादा ही खौफनाक है। रातों को दरिंदों के दहाड़ने की आवाज़ें सुनाई देती और वो जाग कर उनका इंतज़ार करता रहता। जू जू वो आगे बढ़ता रहा, इलाका खतरनाक तर होता गया। अब यहाँ छोटे जानवरों का वजूद खत्म हो गया, जिन्हें वक्तन फवक्तन शिकार करके पेट की आग बुझाता आया था। एक रात इसने एक हाथी पर चंद गोलियां बरसाई। हाथी जख्मी होने के बावजूद भाग निकला। फिर इस किना पर हाथी ने कई बार शीरान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शीरान के पास जितना एमुनेशन था उसने हाथी पर खर्च कर डाला। बिलाखिर एक दिन हाथी मारा गया। अब शीरान के पास किंग के दिए हुए खंजर के अलावा और कोई हथियार नहीं रह गया था, लेकिन ये खंजर भी एक दिन उस वक्त उससे छिन गया जब उसने एक जंगली तेंदुए को निशाना बनाने की कोशिश की। खंजर तेंदुए के जिस्म में पेवस्त हो गया और वो उसे लेकर भागा। शीरान ने तेंदुए को बहुत तलाश किया। उसका ख्याल था कि शायद वो कहीं जख्मी या मुर्दा पड़ा नजर आ जाए, लेकिन तेंदुआ ना मिला। अब शीरान हत्या हो गया था। अव्वल तो इलाका ही छोटे शिकार से खाली था, दूसरे यहाँ पानी भी दस्तयाब न था। कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे, लेकिन उनमें इतना गदला और बदबूदार पानी भरा हुआ था कि एक बार उसे पीने के बाद काफी देर तक शीरान की तबीयत मतलाती रही थी। लेकिन अब वो भूख से दीवाना हो रहा था। दूर दूर तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी जिसके जरिए वो पेट की आग बुझा सकता। इसका लिबास भी जगह जगह से फट चुका था। दाढ़ी और सर के बाल बेतहाशा बढ़ गए थे और एक बार फिर वो कोई वहशी मखलूक मालूम होने लगा। उसे सफर करते हुए 15 दिन हो गए थे। भूख और थकन से निढाल होकर वो एक जगह बैठ गया। दफतन काफी फासले पर उसे झाड़ी में तहरीक से महसूस हुई। उसने नजर जमाकर देखा, वो लोमड़ी थी। इस खतरनाक इलाके में सफर करते हुए पहला छोटा जानवर था जो उसे नजर आया, लेकिन इसके पास लोमड़ी को शिकार करने के लिए कोई हथियार ना था। चुनांचे वो बेसुध होकर लेट गया कि शायद लोमड़ी से मुर्दा समझते उसके करीब आ जाए और उसके जाल में फंस जाए। बहुत सबर आजमा काम था। वो 2 घंटे तक वो बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। लोमड़ी इंतहाई चालाक जानवर है। इसे मालूम था कि लोमड़ी ने अगर इसमें जरा सी भी हरकत महसूस की तो वो तमाम जिंदगी उसके हाथ नहीं आएगी। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और लोमड़ी दबे कदमों उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो इसके करीब पहुंच गया। जैसे इसे सूंघने के लिए झुकी, उसकी दोनों अगली टांगें शीरान के हाथों में थी। फिर लोमड़ी के जिस्म से उठने वाली बदबू से इसे उबकाई से महसूस हुई और उसने लोमड़ी को छोड़ दिया। चंद लम्हे वो बैठा सोचता रहा, फिर उठकर चल पड़ा। वो जल्द अज जल्द इस खौफनाक इलाके से निकल जाना चाहता था। इस बार ये सफर काफी तेज था। वो मुसलसल 5 घंटे तक चलता रहा और उसकी सांस फूलने लगी। उसने अपनी रफ्तार कम कर दी। अब वो उन भूरी पहाड़ियों के नजदीक पहुंच गया था जो दूर से ऐसी महसूस होती थी जैसे कभी करीब ना आएंगी। अब उसे पहाड़ी के ढलानों पर सब्जा भी नजर आने लगा, गोया इस मनहूस इलाके से पीछा छूटने वाला था। बहर तो रात होते तक वो पहाड़ों के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, लेकिन रात को भी उसने अपना सफर जारी रखा। वो चढ़ाई चढ़ता रहा। फिर जब रात की तारीकी इतनी गहरी हो गई कि वो चंद गज के फासले पर भी न देख सके, तो उसने आराम करने की गर्ज से एक चट्टान मुंतखब कर ली। चट्टान काफी बड़ी और मुस्ततिल थी। साफ सुथरी होने की वजह से शीरान को इस पर नहायत पुरस्कून नींद आई। दूसरी सुबह वो जागा तो पहाड़ियों की दूसरी समझ से परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। कभी कभी परिंदों का कोई गोल उसके सर पर से गुजर जाता था। शीरान ने आसमान की जानिब देखा और फिर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। बादल छाए हुए थे। काफी अरसे बाद उसने शफाफ नीलगू आसमान पर बादल देखे थे। बहर तौर यहाँ रुकना भी मकसद ही था। चुनाचे उसने पहाड़ी का बकिया सफर भी तय करना शुरू कर दिया। जब वो चोटी पर पहुंचा तो दिन का तकरीबन 9 बजे थे। उसने चोटी की दूसरी जानिब देखा तो उसकी आंखें मुसर्रत से चमक उठी। उस तरफ दूर तक जंगल फैला हुआ था। थोड़े फासले पर एक छोटी सी नदी गुनगुनाती हुई गुजर रही थी। फिर जब उसने चोटी से दूसरी जानिब उतरना शुरू किया तो हल्की हल्की बारिश होने लगी। शीरान पुरसरत अंदाज में नीचे उतर रहा था। भूख का एहसास कदरे कम हो गया था। एक जगह रुककर उसने एक चट्टान के गड़े में जमाशुदा बारिश का ताज़ा पानी पिया, जिसकी वजह से भूख का एहसास फिर बढ़ गया। ये मनहूस एहसास न जाने क्यों जिंदगी के साथ चिपका हुआ है, अच्छे खासे माहौल को ख़राब कर देता है। उसने उतरते हुए सोचा। बिल आखिर वो नीचे सब्जाजार पर पहुंच गया। बारिश की वजह से नदी में पानी की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई थी। ऊपर से नदी एक छोटा सा बरसाती नाला नज़र आता था, लेकिन नीचे पहुंचकर एहसास हुआ कि वो खासी तुंदो तेज़ नदी है। पानी साफ व शफाफ और बहुत ठंडा था। उसने खूब सैर होकर पिया। बारिश अब भी जारी थी। वो नदी की रवानी को देखते उसमें उतरने की हिमाकत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी गहराई का भी कोई अंदाज़ा नहीं था। चुनाचे वो किनारे के साथ साथ चलने लगा। वो ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ से नदी को अबूर किया जा सके।
काफ़ी दूर चलने के बाद बिलाखिर उसे एक ऐसी जगह नज़र आ ही गई जहाँ से वो इस नदी को छलांग लगाकर अबूर कर सकता था। गो के छलांग बहुत लंबी लगानी पड़ती और कोई भी होशमंद आदमी ऐसी छलांग लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन शीरान ऐसी बातों को कभी खातिर में नहीं लाता था। उसने चंद कदम पीछे हटकर चीते की मानिंद जकंद लगाई और उड़ता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। अब उसकी निगाहें शिकार के तलाश में भटक रही थी। वो आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद वो जंगल में दाखिल हो गया। यहाँ उसे मायूसी नहीं हुई। दूर से कई छोटे बड़े जानवर कलीले करते नजर आ रहे थे, लेकिन शिकार करने उसके पास कोई हथियार ना था। थोड़ी देर तक वो इधर उधर नजरें दौड़ाता रहा। यहाँ ऐसे नुकीले पत्थर भी ना थे जिनसे शिकार करने का तरीका उसे मालूम था। चल लम्हे सोचने के बाद वो एक दरख्त पर चढ़ा और दरमियाने साइज की एक शाख तोड़ ली। शाख की टहनियाँ और पत्ते साफ करने के बाद वो एक डंडे की सूरत इख्तियार कर गई। फिर वो इस डंडे को हाथ में लिए नीचे उतर आया और उन जानवरों को देखने लगा जो इधर उधर दौड़ते फिर रहे थे। उनमें खरगोश भी थे, तीतर भी थे और ऐसे ही छोटे छोटे कई जानवर थे। शीरा ने एक दरख्त के तने से चिपक कर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि कोई जानवर इधर से गुजरे तो उसका शिकार करे। चंद लम्हों बाद एक खरगोश अपनी जवानी के जोर में उस तरफ बढ़ा। दूसरे खरगोश भी इसके पीछे लपके। जो ही वो खरगोश दरख्त के करीब पहुंचा, शीरान का हाथ बिजली की सी तेजी से बढ़ा और लकड़ी खरगोश के सर पर पड़ी। लेकिन वार इतना कारी था कि उसके भेजे के चीथड़े उड़ गए और वो उछला और फिर गिरकर तड़पने लगा। शीरान आगे बढ़ा और खरगोश को उठा लिया। दूसरे खरगोश पलक झपकते में गायब हो गए थे। शीरान ने वहीं खड़े खड़े खरगोश की नर्म व नाजुक खाल उतार डाली और कच्चा गोश्त दांतों से नोच नोच कर खाने लगा। खरगोश खाने के बाद उसने वहशन अंदाज में डकार ली। अब वो एक बार फिर चाको चौबंद नजर आ रहा था। दरख्तों के तवील सिलसिले को अबूर करके वह कैसे मैदान में पहुंच गया जहां थोड़े थोड़े फासले पर झोंपड़ियां बनी हुई थी। मैदान की सबसे पहले झोंपड़ी के करीब पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है? जवाब में झोंपड़ी से जो बरामद हुआ उसे देखकर शीरान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो एक छोटी सी लड़की थी जो दुखदो खाल से उन्हीं इलाकों की रहने वाली मालूम होती थी। शीरान पर नजर पड़ते उसके हलक से घुटी घुटी चीख निकल गई। शीरान हाथ उठाकर नहायत नर्म लहजे में बोला, उसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये जुमला उसने मुकामी जुबान में ही अदा किया था, लेकिन वो लड़की अब भी सहमे हुए अंदाज में झोंपड़ी की दीवार से चिपकी हुई थी और फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। तो मेरे जिस्म और लिबास पर जो ये खून के धब्बे देख रही हो, ये मेरे अपने खून के हैं। मुझे जंगली जानवरों ने जख्मी कर दिया था। लड़की फिर भी कुछ न बोली। तो शीरान ने कदरे गुस्सेले अंदाज में कहा, अंदर जा, कोई और हो तो उसे बुला कर ला। लड़की गराब से झोंपड़ी में घुस गई। शीरान काफी देर तक इंतजार करता रहा। जब झोंपड़ी से कोई बरामद न हो तो झुंझुलाकर वो खुद ही झोंपड़ी में दाखिल हो गया। सामने उसे एक शख्स नजर आया जो प्याल के ढेर पर बैठा परेशान निगाहों से दरवाजे की तरफ देख रहा था। उससे थोड़े ही फासले पर वो लड़की सहमी हुई खड़ी थी। शीरान ने प्याल पर बैठे शख्स का बगौर जायजा लिया। वो दराज कामत था लेकिन मुकामी नहीं मालूम होता था। उसके दोनों बाजू पट्टियों में लिपटे गर्दन पर पड़ी डोरियों में झूल रहे थे। उसके दोनों पैर भी जख्मी थे। शीरान ने इसकी तरफ देखा, दोबारा लड़की पर नजर डाली, फिर हंस पड़ा। क्या ये जंगली बिल्ली तुम्हारी है? शीरान ने जख्मी शख्स से पूछा, लेकिन वो परेशान निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा। शायद मुकामी जुबान उसकी समझ में नहीं आई थी। फिर शीरान ने अंग्रेजी में पूछा, इस जंगली बिल्ली से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अंग्रेजी सुनकर उस शख्स के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये जंगली बिल्ली दरअसल मेरी मेज़बान है, उसने जवाब दिया। तुमसे डर कर यहाँ आ छुपी है। अपनी च्याऊ में मुझसे कुछ कह रही है। इसकी जुबान आज तक मेरी समझ में नहीं आ सकी। आम हालात में इशारों से काम चल जाता है, लेकिन खौफजदा होने के बाइस ये इशारे भी भूल गई है। ओह, शीरान ने कहका लगाया, फिर बोला, तुम मुकामी बाशिंदे मालूम नहीं होते। हाँ, मेरा ताल्लुक यहाँ से नहीं, लेकिन तुम अंग्रेजी रुआनी से बोल लेते हो। वैसे शक्ल सूरत से तुम भी मुझे मुकामी नहीं लगते, लेकिन तुम्हारा हुलिया, क्या तुम जंगलों में भटकते फिरते हो? कोई मुहिम सर करने निकले थे या किसी खजाने की तलाश में सरगर्दा थे? तुम बार्थम के मशरकी इलाके में सफ़र करते हो यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हारे बदन पर पड़े निशानात तुम्हारी कैफियत यही बताती हैं। तुम बहुत अलग किस्म के कैफा शनास मालूम होते हो। बहरतौर इस जंगली बिल्ली से कहो कि मुझे खाने के लिए कुछ दे। खरगोश का कच्चा गोश्त खाने के बाद मेरी तबीयत मतलाने लगी है। कच्चा गोश्त? उस शख्स की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ, पहले मेरे खाने पीने का इंतजाम करो। क्या ये झोंपड़ा तुम्हारा है? नहीं दोस्त, मैंने बताया ना कि ये लड़की मेरी मेज़बान है। इसका नाम चाटिकी है। थोड़े ही फासले पर बस्ती में रहती है। यहाँ अजराहे कर मेरी मेज़बानी कर रही है। दरअसल मैं शदीद ज़ख्मी हूँ। वो तो नज़र आ ही रहे हो। तुम इशारों की ज़ुबान में इससे कहो कि मेरे खाने पीने का बंदोबस्त करे। बल्कि ठहरो, मैं खुद इससे बात करता हूँ। शीरान लड़की की तरफ मुतवज्जो हुआ, फिर इंतहाई नर्म लहजे में बोला, तुमने देखा तुम्हारे साथी ने मुझसे कोई खौफ नहीं खाया। मैंने इसे अपने बारे में बता दिया है। दरअसल मैं एक परेशान हाल मुसाफिर हूँ। मैं जंगलों में भटक रहा था कि जंगली जानवरों ने मुझे जख्मी कर दिया। देखो मेरी क्या हालत हो गई है। मैं भूख से तड़प रहा हूँ। अच्छी लड़की, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगी? लड़की के चेहरे पर अब किसी कदर इत्मीनान के आसार नजर आने लगे थे। उसने अपने साथी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए इस बात में गर्दन हिला दी।
तब लड़की के होंठों पर भी मुस्कुराहट उभर आई। उसने गर्दन हिलाई और शीरान की तरफ देखकर बोली, तुम तो हमारी जुबान भी जानते हो और शायद इसकी जुबान भी बोल लेते हो। ये बड़ा अच्छा हुआ। ठहरो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। लेकिन सुनो लड़की, किसी को मेरे बारे में कुछ न बताना, बस खामोशी से जाओ और खामोशी से लौट आओ। मैंने तो इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया, लड़की बोली और कलांचे भरती हुई झोंपड़ी से निकल गई। शीरान आराम से जमीन पर पांव फैलाकर बैठ गया। प्याल पर बैठा हुआ जख्मी आदमी अजीब सी निगाहों से देख रहा था। उसने शीरान के हाथों और मुंह पर जमे खून को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि वो इसका अपना खून नहीं था, क्योंकि इसके जिस्म पर कोई जख्म नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही, फिर वो बोला, मेरा नाम विनोद है, तुम्हारा क्या नाम है? पहले खाना खा लूं, उसके बाद तुम्हारा नाम सुनूंगा और अपना नाम बताऊंगा, शीरान ने कहा। थोड़ी देर बाद लड़की खाने पीने की बहुत सी चीजें ले आई और शीरान उन पर टूट पड़ा। देखते देखते उसने सब कुछ साफ कर दिया, जिस तरह चौंक कर जख्मी आदमी की तरह देखा जैसे अब तक उसकी मौजूदगी से बेखबर रहा हो। ओ सॉरी, मैं तुम्हें खाने के लिए पूछना तो भूल ही गया, क्या इसमें तुम्हारा खाना भी शामिल था? यकीनन, जख्मी शख्स मुस्कुराया। शीरान भी हंसने लगा। मैं इतना ही भूखा था कि इस वक्त मुझे खाने के अलावा कोई बात याद न रही थी। हाँ, इसका अंदाज़ा हो रहा था। क्या तुम यकीन करोगे कि कई दिन के फाके के बाद मैंने सिर्फ एक कच्चा खरगोश चबाया था? क्या ये खुराक एक आदमी के लिए काफ़ी है? कच्चा खरगोश? उस शख्स ने हैरत से पूछा। हाँ, शीरान ने कहा और हंसने लगा, लेकिन उसकी ये हंसी बेहद खौफनाक थी और अजनबी अपने जिस्म में खौफ की लहरें महसूस किए बगैर न रह सका।